be, you've worked with an ensemble cast. It's such a huge cast, and you've worked with all the good actors that are there, and it's a very great start to your career in a way. And what do you have to say about that? And tell us some anecdotes on the set that you've had and gone through. I am very, very thrilled and very excited to be part of this biggest franchisee, Houseful 5, and to be working and sharing screen space alongside Akshay sir, all the big casts, Abhishek sir, Ritesh sir, Sanjay sir, Nana sir, like the generational actors. It's like humongous. It's something like I never imagined and a dream come true. मैं बहुत खुश हूँ, so exhilarated, so excited, so thrilled, and I'm so truly like overwhelmed that my makers, producers and my director thought that I'm worthy of doing justice to my character Lucy in the film. तो बहुत अच्छा लग रहा है. Anecdotes, like every day on set was like so much fun. I always felt that हम लोग पिकनिक पे आए हुए हैं, एक क्लासरूम है और हमारा एक टीचर है और हम लोग आते हैं, मस्ती होती है और कट होता है तो बस मस्ती फिर से चालू. And the film itself is so funny. तो बहुत मस्ती थी हम लोगों का. It was a very, very laughter riot. So one of your interviews you were telling about that scene where Akshay took the phone and he texted from the Jacqueline's phone to you. Correct. Akshay sir is known for this. That's so he's known for that jolly character, and that's why he's playing jolly. Yeah. So what do you have to say about him? Like working with him, how was that with you? It's on top of the world, yeah. I mean, I've worked with him previously in an ad. The controversial ad, but then this is my legit first film with him, so it feels amazing कि यार आप उनको देख रहे हो स्क्रीन पे, and he's one of the biggest mega stars of our country, और आपको उनके साथ एक फिल्म में काम करने का मौका मिलता है alongside him. तो I think ये बहुत एक अच्छा opportunity था मेरे लिए for a newcomer like me. It's so much to learn from and so excited for the future aspects also. So tell us something about your character in the film. Obviously everybody knows now, it's everywhere. Like everybody is just talking you saw about the film? Yeah. Yes. Everybody is just talking about the film, and everybody is talking about the killer and everything. And this new side of the film that has come, an A and B जो है दो अलग-अलग killers, but roles almost similar ही हैं. आधा घंटा film का last का थोड़ा different है. So how do you look to that? And ऑडियंस ने ऑलरेडी, फैंस ने फ्लड कर रखा है आपके नाम से ऑलरेडी. देयर आर पीपल टॉकिंग अबाउट यू. सो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना कुछ हो गया है, इतना ओवरवेलमिंग हो रहा है. और रातों रात, लाइक मैं हमेशा सुनती थी, वन फ्राइडे कैन चेंज योर लाइफ. सो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस एंड ए कल्मिनेशन ऑफ कि आप एफर्ट डाल रहे हो, वो चीज़ तो हुई है. बाकी आई थिंक इट्स जस्ट द बिगिनिंग फॉर मी. I have a long way to go if God is really more kinder to me. I want to work like even in a more bigger and better films and bigger characters and all that. But बहुत अच्छा लग रहा है. I never thought that so much love will come my way. तो बहुत अच्छा फील करती हूँ. अकेले बैठी होती हूँ तो आई वॉज थिंकिंग कि यार दी अदर डे इतना स्ट्रेस हो रहा था, फिल्म रिलीज़ होने वाली है और फीलिंग नहीं आ रही थी कि एक फीलिंग वाली बात होती है. और जैसी फिल्म रिलीज़ हुई लाल परी के टाइम पे, वो जो एक वेव एकदम से आया लाल परी, आई वाज लाइक ओके चलो गाना सुपर हिट है तो आई एम पार्ट ऑफ एवरीवन हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब. बट सडनली एकदम से ऐसे बात होने लग गई तो तब मुझे लगा कि नहीं कुछ तो अच्छा हो रहा है. फिर फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म इट्सेल्फ इट्स सच अ बिग थिंग. हमने तो शूट किया है तो हमारे लिए तो 5A 5B दोनों ही वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग हो. तो नाउ यू विल ऑल डिसाइड कि कौन सी ज़्यादा देखनी है. मैं बोलूँगी दोनों देखो, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है. बट टू बी अ पार्ट ऑफ सच बिग फ्रेंचाइजी और उन लोगों के बीच में रहना, खड़े होना और वो सेम स्पेस शेयर करना एज देम, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म एंड आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. Is there someone you are wishing to work as an actor and as a filmmaker you want to work in their film? Yes, the list is long. The list is long. I surely want to work with Shah Rukh sir, Ranbir Kapoor, and again Akshay sir, and many more people. And of course, lot of directors. We have such amazing list of directors and filmmakers. I would love to work with Imtiaz sir, Raju sir, Sanjay sir. I would love to work with my makers again. So yes, the list is long. Karan sir, of course. Who doesn't want to work with Dhamma production is Dhamma production. So talking about you've got
you've been through Bollywood, you have done a reality show. So, you know, from the... I like what "been through Bollywood." Yeah, because the journey is like, it's quite full of hustles. So, you know, from being a dentist to a reality show and now to Bollywood film. So, how does that feel? And from a dentist to acting, we want to know that, because you don't come up from a family background where there's acting or there's something related to Bollywood. You are a newcomer for everyone. So how do you want to say about that? You know, बहुत ही ज़्यादा a journey full of ups and downs रही है. And if I say difficult, that would be an understatement. But nevertheless, अगर आप बहुत ज़्यादा determined हैं, तो I think things start calling you on its own, because ऊपर वाला भी आपका शिद्दत मेहनत देखता है, and that's what I think I'm a classic example of this. But it has to be destined also. I always feel कि अगर आपकी तकदीर में लिखा है, आपके लक में लिखा है, तो चीज़ें आपके लिए बनती जाएंगी, क्योंकि हार्ड वर्क तो सबको ही करना पड़ता है. And I always feel, and I was told once, that you make it in this industry because of your right attitude, even if you're the last person believing in yourself. So that all is there, that goes hand in hand. I always wanted to see myself on bigger screen. तब मुझे समझ नहीं थी कि acting क्या होती है, because singing और dancing का ही शौक था. और I come from a like very normal middle class conservative Brahmin family, जहाँ पे हम सबको वही है कि पढ़ाई को ही ज़्यादा भाव मिलता है कि आप पढ़ाई करो, नहीं करोगे तो पिटाई होगी. तो घर में भी वही माहौल था. तो अनफॉर्चुनेटली आई वॉज गुड इन स्टडीज़, और फिर बस पढ़ते गए, क्लियर हो गया, फिर पढ़ाई की. बट समझ नहीं आ रहा था, मैं एग्ज़ाम भी लिखती थी. सो आई यूज्ड टू वंडर, यार मुझे तो एक्टिंग करनी है, कब होगा. वो इम्पेशंस थी हमेशा से. एंड देन इवेंचुअली, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई डिसाइडेड एंड आई वेंट टू बॉम्बे. तो वहाँ पे पहुँच के तो लगा कि दुनिया कुछ और ही है. अब तो मतलब इट्स इम्पॉसिबल. तो जब आपको कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, तो चीज़ें और डिफ़िकल्ट होती हैं. थिंग्स आर क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू. यू डोंट नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं. मुझे तो कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर भी मालूम नहीं थे. तो बस एक ही थॉट था कि मुझे करना है, कैसे करना है. दिन रात धुन लगी हुई है. इवन अभी भी राइट नाउ आई एम स्टिल द सेम. मुझे अभी कोई डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है. नॉट दैट एकदम से चीज़ें बदलेंगी. यू डोंट बिकम अ स्टार ओवरनाइट, बट थिंग्स डू चेंज ओवरनाइट. सो दैट इज़ हैपेंड विद मी. एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं क्राफ्ट पे तो काम करूँगी, बिकॉज आई वॉज टोल्ड लॉट ऑफ थिंग्स बाय डिफरेंट पीपल. हर कोई सजेशंस देता था. तो मैंने पापा को कहा, पापा आई एम योर इन्वेस्टमेंट, प्लीज़ मुझे ये करना है, एक्टिंग कोर्स मुझे आप भेज दो. तो बोले, भैया नहीं चाहिए हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट. अब ये हो गया, अब तुमको ये करना है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा करना क्या है. तो यू नो हाउ नॉर्मल पेरेंट्स रिएक्ट, उनका वही रिएक्शन था. इतने नोशंस हैं फिल्म इंडस्ट्री को लेके जो कि अब टूट रहे हैं, बिकॉज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इतना OTT, इतना काम आ रहा है, इतने अच्छे लोग आ गए हैं. सो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट नाउ. पहले कुछ टाइम के पहले ये नहीं था. अभी आई थिंक हर साल 2 साल में चीज़ें चेंज हो रही हैं. फाइनली आई वेंट टू LA, आई फिनिश्ड माई कोर्स देयर, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी, ली स्ट्रासबर्ग, एंड देन आई केम बैक. क्योंकि कोविड के बाद में आई थी, तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था. आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस मोर, और फिर आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स. And in between, I happened to shoot for that controversial pan masala ad with Shahrukh sir, Ajay and Akshay sir. वो शूट किया, और फिर मुझे लगा I have arrived. अब तो मैं कुछ काम करूँगी ही नहीं, क्योंकि अब तो मेरे पास ऑफर्स भरे हुए होंगे. किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि एड रिलीज ही नहीं हुआ. एड रिलीज हुआ बिग बॉस के भी 1 साल बाद ऑलमोस्ट. सो ऑलमोस्ट 2 साल इस चीज़ में निकल गए, और मैं वेट कर रही हूँ कि काम आएगा. मैं तो नॉर्मल कुछ अब करूँगी नहीं, बिकॉज आई एम तो द स्टार. इतना डिलूलू स्टेट में थी मैं. तो क्योंकि आपको रहना भी पड़ेगा ना. यू हैव टू बी एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट, वरना कोई और आपको सपोर्ट तो कर नहीं रहा. बट दैट थिंग ऑल्सो हेल्प्ड मी अ लॉट. यू नो माई सर्वाइवल, दैट इज़ माई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट टू स्टे इन बॉम्बे. क्योंकि हर कोई टैलेंटेड है, हर कोई सुंदर है, हर कोई अपने ऊपर काम कर रहा है, कोई किसी से कम नहीं है. सो मुझे यही पूछते थे, व्हाट इज़ इट सो स्पेशल इन यू, क्या एक्स्ट्रा. यार काम जब तक नहीं आता तब तक आप कैसे प्रूव करोगे कि मैं फोड़ दूंगी स्क्रीन, मैं प्रूव कर दूंगी अपने आप को. यू नो, फॉर दैट वर्क हैज़ टू रीच यू. ऑल दैट हैपेंड, एंड देन बिग बॉस हैपेंड. तो पहले मैंने बोला, बिग बॉस कौन करेगा बिग बॉस, यू नो, बिकॉज मैं कभी बिग बॉस देखा ही नहीं लाइफ में. बट माई मदर एंड सिस्टर आर लाइक ह्यूज फैन ऑफ बिग बॉस, आर्डेंट फैंस.
तो फिर पापा ने भी बोला कि कुछ तो करो, कहीं तो काम शुरू करो, ऐसे मतलब कब बैठे रहोगे। प्लस कोविड हुआ था तो सबको ये होप ही ख़त्म थी कि अब तो कोई फिल्में बनाएगा। मैंने बोला मैं कैसे टाइम पे आ गई हूँ, सबका सपोर्ट सिस्टम है, मैं कहाँ से शुरू करूँगी फिर से, यू नो। एनी हाउ वो हुआ और सब लोगों ने देखा बिग बॉस, और इवेंचुअली देन एड वाज आल्सो रिलीज्ड, देन आई वाज कॉल्ड फॉर द ऑडिशंस, and then I'm just one fine day I got a call from my makers that we would like to cast you for this, and I auditioned already for that. So I was very happy, and that's how this happened. So never say never. Keep trying. You come through this role, Lucy, like the makers called you up or you auditioned something. Yeah, I'm just so glad they saw Lucy in me. मुझे तो इतना ही है because audition दिया था, बात होती थी, और फिर वन फाइन डे डिसाइड कि अच्छा ऐसे है। ऑफ कोर्स शो रील्स आपकी होती हैं तो दैट्स अ वे कि आप सबको जाके अपनी शो रील दिखाते हो, एंड देन व्हेन यू गेट अ कॉल, तो ये तो उनका विजन है एंटायरली। आई कैन नॉट टेक एनी क्रेडिट फॉर दैट इफ दे सी अ सर्टेन कैरेक्टर इन यू, बिकॉज यू हैव टू फिट द बिल एज वेल। जैसे कहते हैं ना कि कैरेक्टराइजेशन है कि टिक 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 टिक, तो ऑल दोज थिंग्स। सो जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है, बट मुझे नहीं पता था क्योंकि स्क्रिप्ट भी बहुत अलग तरीके की थी, तो वो कैरेक्टर बहुत अलग था स्क्रिप्ट में, और फिर जब वो निकल कर आया तो अगेन इतना मतलब जब लाल परी आया तब मुझे लगा हाँ चलो कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि जब फिल्म बन गई है और ऑलरेडी आप इतने बड़े स्टार कास्ट में हो, आपको पता ही नहीं है कि कितना रहने वाला है, कितना कटने वाला है, बिकॉज यू हैव टू गो बाय द स्क्रिप्ट एंड बाय द सीन्स। यू आर प्रेजेंट इन द सीन्स, बट आपके साथ धुरंधर लोग खड़े हुए हैं, इतने सीनियर एक्टर्स हैं, यू लर्निंग फ्रॉम। सो आई वाज लाइक ये आई वाज जस्ट एक्साइटेड कि यार मैं सबके साथ काम कर रही हूँ। बट अभी जो प्यार मिल रहा है विच इज़ सो ओवरवेलमिंग कि यही चाहिए, इससे भी ज़्यादा मैडनेस चाहिए। अगर फैंस आपका नाम ना लें, आपको इतना प्यार ना करें तो क्या मतलब है। एक्चुअली बिग बॉस के बाद मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा, बट हाउसफुल 5 के बाद जब हम लोग ट्रेलर और प्रमोशंस में गए तो इट वाज ह्यूज, बिकॉज मैं पहली बार बिग बॉस के बाद ऐसे फील्ड में मतलब निकल रही थी विद एवरीवन। तो वो जो प्यार मिला, वो जो दैट इज़ सररियल, यू नो। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, आपको इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म का हिस्सा बनने मिल रहा है, यू आर बीइंग फीचर्ड अलोंगसाइड सच अमेजिंग ब्रिलियंट स्टॉलवर्ड्स, सो नथिंग कुड हैव बीन बेटर देन दिस। एंड देन आपको एक लाल परी, आप गाने में आप आते हो किसी के साथ, सब ने बहुत ब्रिलियंट परफॉर्म किया है मस्त से, बट देन सडनली यू नो एक चीज़ आती है तो मज़ा आता है ऐसे। नॉट एट ऑल, दे आर सो हैप्पी। सी व्हेन यू आर एक्टिंग इनटू समथिंग, और आप जब किसी चीज़ में एज अ किरदार उतरते हो, देन यू प्लेइंग दैट कैरेक्टर, you're not playing yourself, you're living a different life, and of course as an actor you have to separate your personal you know this thing, you have to be completely surrendered to your character and everything for that matter. But जब mom dad saw, they were like very happy. हमें तो पता ही नहीं था कि एकदम से ऐसे start हो जाएगा and then things will go viral like that. I was very thrilled, I was so happy. मम्मी पापा तो खुशी का ठिकाना नहीं, बहुत खुश थे कि अच्छा हाँ माई सिस्टर, एवरीबडी वाज लाइक। होता है ना कि एकदम से आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, अचानक से एक चीज़ आती है, तो बट आई एम वेरी ग्रेटफुल। कूडोज टू तरुण सर, आवर डायरेक्टर, उन्होंने इतने अच्छे से उस चीज़ को किया, हर मोमेंट पे समझाया, बताया। लाइक बिग बॉस करते हैं तो उसके बाद आर देयर एनी चैलेंजेस दैट यू फेस्ड, और फिल्म इंडस्ट्री में जब आप घुसते हो एज अ न्यू कमर, आर देयर एनी चैलेंजेस अभी, मतलब पहले तो you know actors used to say कि बहुत problems होती हैं, there are many things that you do. Has the trajectory changed for the newcomers अभी? Surprisingly, I feel and I hope that it should, because हमेशा ये बोला गया है कि बिग बॉस के बाद आपको काम नहीं मिलेगा, whatever the notions are, and I'm sure it has happened with everyone. I think God is just very kind to me, I would say, because I don't know. You have to be just true to yourself, be it Big Boss, be it anywhere, क्योंकि आपकी सच्चाई ऊपर वाले से कभी नहीं छुपती है। तो इफ़ यूर जस्ट बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा, क्लिक हो जाएगा। आई नेवर ट्राइड टू बी समवन एल्स हु आई वाज नॉट। आई नेवर ट्राइड टू प्लीज एनीवन फॉर कैमराज, टू गेज ऑडियंस। आपको अच्छा लग रहा है ठीक है, नहीं लग रहा है आई एम ओके टू गो, बट आई कैन नॉट बी समवन हु आई एम नॉट। सो आई थिंक दैट केम अक्रॉस। और एक्टिंग भी मुझे लगता है इज़ अ बिजनेस ऑफ इमोशंस, ऑनेस्टी। आपको बहुत ऑनेस्ट होना पड़ता है। जो भी आर्टिस्ट हैं आज तक, जितने भी बड़े स्टार्स आप देख रहे हैं, there is an honesty and innocence with their craft, that's why they're surviving for so long. आपको उसी मैडनेस और शिद्दत से चीज़ें करनी होती हैं तो ही आपको नवाजा जाता है उस चीज़ के लिए।
तो मुझे लगता है कि मेहनत प्लस आपका लक फैक्टर, किस्मत है, मम्मी कहती है किस्मत भगवान कुछ दे ना दे, किस्मत दे तो वो तो है ही, गोज विदाउट सेइंग, उनकी मर्जी, भगवान जी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, आई फील। ट्रू। So can you tell us something about your upcoming projects? कुछ और आप कर रहे हो? Something things are in the pipeline and I hope we get to talk again on this thing, but it will be too early because पहले हो तो जाए और अच्छे से but I'm very happy with the numbers we are receiving for Houseful 5. Yeah. Now when you go and see yourself on the big screen, what is that experience? Is that very unreal because you very see such unreal. a cast with you, you know, on the screen and then you are in between them. How does that feel? And did you see the picture? मतलब A और B दोनों parts आपने देखे? हाँ मैंने देखा है, of course देखी है, shoot भी किया है, I'm living every moment of it. बहुत मैं शब्दों में डाल ही नहीं सकती हूँ. It is actually unreal experience for me to fathom the fact that I am part of such huge cast and God is very kind. Unbelievable experience और बहुत अभी भी बहुत overwhelmed हूँ. बहुत चीज़ें कुछ चीज़ें ना आप महसूस कर सकते हो, बोल नहीं सकते हो. Because it gives me flashbacks of the days when I was working hard and looking for work, and I'm just so overwhelmed right now. So yeah, it's been a journey, and सही मायनों में journey has just begun. तो अभी बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है.